हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Non agreement. There is the foreign policy of India. There is a non agreement. Is the most important here. The non agreement has been regarded as a most important feature of Indian as a foreign policy. Non agreement aim to be maintained on national and independent in a foreign affair by not joining any military alliance forced by the USA as a Soviet unit in the aftermath of the Second World War. There is a non-agreement was a neither neutralizes and nor is a non-violent, nor isolationism. It is was a dynamic concept which meant not committing to any militarist bloc but taking on an independent stand on international issue according to the merit of each case. The policy of non-agreement won many supporters in the developing countries as it is provided an opportunity to them for protecting their sovereignty as also returning there is a freedom of their action during to the tensions or called war period. India is a play an important role in a foreign to the non-agreement movement. Their name, non-agreement movement, their name, the formation of the Nehru. The concept of NAM emerged through the gradually process. Nehru took their invented to the convent there is a Asian Relation Conference in New Delhi in 1947. Later on, the conference of 29 countries of Asia and Africa was held at Bangkok, Indonesia in 1955. This was the first gatherings of its kind which is planned to be worked together for a colonial liberation, peace and cultural, economics and political cooperation. The Bandungs of the Baghdad and the 1961 where the first NAM conference was held was the logically processed to the project and alternative to the Cold War bloc is a politics and a creation of newly independent country of their independent and sovereign right. And Cold War was intense or rival to the between to the USA and Soviet Union without a fighting a direct war to attract allies in Africa. Asia and Latin America, it is started soon after the Second World War and continued for the 45 years. And these two big countries become a two opposite pole and the known as the East and West. The world politics is a revolved around of these two poles. Thus, their world become a bipolar. There is a two poles here. This is called to the bipolar. There is a Soviet Union and USA. That is called to the bipolar. Among there is a non-agreement, there is a Nehru had involved the special relationship with the President Tito of their Yugoslavia and the Nazar of Egypt. And these three are regarded as the founding is the fathers of the non-agreement movement. That is the most important here. They are father of the non-agreement movement. The non-agreement movement was a group of the newly independent state who refused to accept the decade of the former is a colonial master and decided to act according to their own judgment on issue of international concern. There is a non-agreement movement is anti-imperialist of in approach. India as a prime architect of non-agreement and as one of the leading members of the non-agreement movement has taken as an active part in its growth. There is the most important. The non-agreement movement is a providing all member states, regardless of size and importance, an opportunity to the participate in a global decision making and world politics. India is a host to 7th is a NAM is a summit at New Delhi in 1983. India hoped the NAM took up their case of development and discriminant and is a Palestine is a question. There is the most important here. The series of the NAM was a product of the Cold War, a scenario and their bipolar world. Many scholars have questioned the relevance of the NAM after end of the Cold War and demise of the Soviet Union. However, even in the present scenario, the NAM has a significant role of play.
The first with the disintegrations of Soviet Union, the world faced threat from a unipolar world. The NAM can act as a check against USA dominance. Secondly, the developing North and developing South world are divided over several economical issues. The NAM remain a very relevant is a form the third world war country engage the development is a nation and productivity dialogues. Moreover, the NAM can prove to be a powerful instrument for a South and South cooperation. Such as a thing is essentially if the third world country are increasing their beginnings of power, vice versa, there is a developed world. India continue to take active part in a non-elegant is a movement even after the end of Cold War. Finally, the developing countries united under to the form of NAM have to fight from the reform UNA and change it is according to the requirement of 21st century. साथ हमारे समक्ष है गुट निरपेक्षता यानी नॉन एग्रीमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुट निरपेक्षता जिसको भारत ने अपनाया था। कहते हैं गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्षता का उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बनाए गए किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर विदेशी मामलों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता को कायम रखना, यही गुट निरपेक्ष का उद्देश्य था। अगर आपको आ जाता है एग्जाम में गुट निरपेक्ष किसे कहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना सा ही वर्ड याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्षता का उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बनाए गए किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर अपना अलग से ही स्वतंत्रता कायम रखना, यही गुट निरपेक्ष का उद्देश्य था और यही गुट निरपेक्ष का परिभाषा भी कहा जा सकता है। गुट निरपेक्ष न तो उदासीन थी और न ही तटस्थ था और न ही स्वयं को पृथक रखना था। ठीक है, गुट निरपेक्ष में उस सभी देशों को सम्मिलित किया गया जो उस समय आज़ाद हुए थे और इन्होंने न तो अमेरिका खेमा को अपनाया न सोवियत यूनियन को खेमा को अपनाया। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने में ही अपना भलाई समझा। कहते हैं यह एक शक्तिशाली परिकल्पना थी जिसमें किसी भी सैन्य गुट से कोई वचनबद्धता नहीं थी। यानी देखा जाए तो इन्होंने किसी भी गुट में सम्मिलित न होने की वचनबद्धता को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। यानी न तो अमेरिका गुट में शामिल हुए और न ही ये सोवियत यूनियन में सम्मिलित हुए। अतुल यह प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उसके गुण दोष के आधार पर जो है स्वतंत्रता रखना था। गुट निरपेक्षता की नीति को विकासशील देशों ने समर्थन भी दिया क्योंकि इससे उन देशों को जो है अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की अवसर भी मिल गया और शीत युद्ध के दौरान अपनी गतिविधियों को संचालित करने की स्वतंत्रता भी हो गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत बनाने में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी इसमें भारत का जो है बहुत ही विशेष योगदान था और ये जो थे नेहरू के जो है कूटनीति और जो है अच्छे विचारधाराओं के कारण ही गुट निरपेक्ष का जो है उदय हुआ। इस परिकल्पना का विकास धीरे धीरे हुआ और 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंधों के सम्मेलन को बुलाकर नेहरू ने इसकी पहल भी की। इसके बाद 1955 में एशिया और अफ्रीका के जो है 29 देशों का सम्मेलन बांडुंग जो था इंडोनेशिया में हुआ। यह अपने प्रकार का पहला सम्मेलन था जिसमें शांति, उपनिवेशवाद से मुक्त और सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग की दिशा में साथ साथ कार्य करने की शपथ ली गई थी। 1961 में जो है बेल्ग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ जिसने शीत युद्ध की गुट रणनीति का विकल्प प्रस्तुत किया तथा यह नव स्वतंत्र देशों को अपने स्वतंत्र और संप्रभु अधिकारों का प्रयोग का साहस दिया। यानी जो देश उस समय स्वतंत्र हुए थे उनको काफ़ी साहस दिया। ये गुट निरपेक्ष की सबसे पहली नीति थी। यह आंदोलन शीत युद्ध के संदर्भ में एक विकल्प था जिसे नव स्वतंत्र देशों को अपनी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता अधिकारों के प्रयोग करने का अवसर मिल गया। यानी हर देश अपना पैरों पे खड़ा होना चाहता था, किसी भी एक खेमे में नहीं जाना चाहता था क्योंकि उस खेमे में जाने का मतलब था गुलाम और वो गुलाम दोबारा नहीं बनना चाहते थे। इसलिए सभी देशों ने जो स्वतंत्र हुए थे वो गुट निरपेक्ष को ही अपनाया। न वो अमेरिका खेमा में गए न सोवियत खेमा में गए और वो स्वयं ही अपने आप को स्वतंत्र रखे और ये बहुत बड़ी बात इनके लिए था।
अमेरिका और सोवियत संघ के जो बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता के शीत युद्ध था, जिसमें आमने सामने युद्ध लड़े बिना वो दोनों अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को आकर्षित करने में लगे हुए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद आरंभ हुआ था और 45 वर्ष तक चलता रहा। आपको अगर याद होगा तो जो हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 18 तक चला था, और सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुई थी जो है 1939 से लेकर 1945 तक हुई थी, और इसी के बाद 45 से लेकर 1991 तक जो है शीत युद्ध की दौड़ चली। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और कहते हैं कि इसमें दो खेमा थी, अमेरिका था और सोवियत यूनियन था, यानी यूएसएसआर था। दोनों का ही एक ही महत्वाकांक्षा था कि सभी देशों को अपने खेमे में लाना, और सभी देशों को आकर्षित करने के लिए ये दोनों जो है विचारों का युद्ध कर रही थी, ठीक है, और बातों का युद्ध हो रहा था, ठीक है, मीडिया का युद्ध हो रहा था। तो इसे ही शीत युद्ध का नाम दिया गया, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद प्रारंभ हुआ था और 45 वर्ष तक चलता रहा, और ये दोनों राष्ट्र दो विपरीत ध्रुव बन गए थे और पूर्व तथा पश्चिम के नाम से जाने जाते थे। उस समय जो था दोनों खेमों को पूर्व और पश्चिम के नाम से जाना जाता था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। विश्व की राजनीति इन दोनों ध्रुवों के चारों तरफ घूमती थी, और इस प्रकार विश्व जो था दो ध्रुवीय बन गया था। गुट निरपेक्ष में नेहरू ने युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिस्र के नसर के जो है विशेष संबंधों का विकास किया। इन्हीं तीनों के गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है जनक भी माना जाता है। गुट जो है निरपेक्ष आंदोलन नव स्वतंत्र राष्ट्रों के वह समूह था जिसने अपने पूर्व उपनिवेशों, स्वामियों और तनाशाहियों को जो है अस्वीकार कर दिया गया, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने का निश्चय भी किया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वभाव से साम्राज्यवाद का विरोधी थे, और गुट निरपेक्ष मुख्य शिल्पी होने और गुट निरपेक्ष आंदोलन का अग्रणीय सदस्य होने के कारण भारत ने इसके विकास में एक सक्रिय भूमिका भी निभाई। यानी भारत का जो है गुट निरपेक्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान था। गुट निरपेक्ष आंदोलन सभी सदस्य राष्ट्र को उनके आकार और महत्व के आधार के बिना ही उन्हें विश्व राजनीतिक और विश्व संबंधी निर्णय लेने के अवसर प्रदान करते थे। भारत ने 1993 में नई दिल्ली में 7वें गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक की मेजबानी की। भारत ने आशा जताई कि यह आंदोलन विकास, निशस्त्रीकरण और जो है फिलिस्तीनी के प्रश्न पर काम करेगा। यह आंदोलन क्योंकि शीत युद्ध और जो था ध्रुवीय यानी दो ध्रुवीय विश्व का परिणाम था, यानी शीत युद्ध और ध्रुवीय का परिणाम था। अंत बहुत से विद्वान शीत युद्ध और सोवियत संघ विघटन के बाद इसकी परिसंगतता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहली यह कि सोवियत संघ विघटन के पश्चात विश्व को एक जो था ध्रुवीय विश्व की खतरा है वो टल गया था। यह आंदोलन अफ्रीका के जो है प्रभुत्व पर अंकुश लगाने का काम भी करता है। दूसरे, विकसित उत्तर और विकासशील दक्षिण दुनिया आर्थिक मामलों में बटी हुई नजर आ रही है। यह आंदोलन तीसरे विश्व युद्ध के देशों को उनके विचार व्यक्त करने का एक सही मंच प्रस्तुत कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह आंदोलन दक्षिण के बीच सहयोग का एक सशक्त साधन बन गया है। अंत यदि तीसरे विश्व युद्ध के राष्ट्र विकसित देशों की तुलना में जो है अपनी प्रत्याशी बढ़ाना चाहते हैं, यानी तीसरी युद्ध जो हो रही है अभी देख भी आप सकते हो, ठीक है, तो कहते हैं यह आंदोलन अति आवश्यक भी था, और शीत युद्ध के अंत के बाद भी भारत इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। अंत में इस आंदोलन के अंतर्गत आने वाली विकासशील देशों को 21वीं सदी की आवश्यकता अनुसार संयुक्त राष्ट्र में परिवर्तन के लिए संघर्षशील होना ही पड़ेगा।